Okay students, let us proceed to find the integration of question number 7 of second part of exercise number 3.3 of mathematics 2. Okay, here we have given question number 7 as integral of 4 to the power x into 4 to the power x plus 4 in under root. Okay, means we have to integrate under root of 4 to the power x into 4 to the power x plus 4 dx. Students, we know that integral of under root of x square plus a square dx is equal to x by 2 under root of x square plus a square by 2 into log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Okay, we know that integral of under root of x square plus a square, there are two terms. There are within under root, that is base. Base is combination of two terms. First is x square and second one is a square. इसके अलावा कोई भी टर्म, कोई भी फंक्शन कुछ भी नहीं है. बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग हियर 4 to the power x is extra term, that is multiplier of 4 to the power x plus 4. Okay, so how we can remove 4 to the power x from here? Okay, क्यों रिमूव करना है? Since we have to use this format of integral, हमें यही फॉर्मेट यूज करना है. ओके, तो कैसे आप रिमूव करोगे इसको? 4 to the power x को कैसे यहां से हटाओगे? From which we can use this format of integral. Okay, let us see. Students, we can write it as under root of 4 square. अब 4 to the power x है कहाँ? अंडर रूट के अंदर. मीन्स हमें इसको ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करना है जिसका हमें आसानी से इजीली स्क्वायर रूट मिल सके. ओके, तो हम कैसे करेंगे? 4 to the power x मीन्स 2 to the power 2x. भाई 2 to the power 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. देन 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. और पावर तो x था ही, and power get multiplied with each other. We know that. Okay, अब इसको ऐसे रहने दीजिए. आप इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, that is 2 to the power x to the whole square plus 2 square. इसको आप बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए जिससे आपको समझ में आए. dx. बताइए कोई प्रॉब्लम? भाई 4 था, 4 मतलब क्या? 2 स्क्वायर और उसका पावर तो x था. हमने क्या किया? इस फॉर्म में प्रेजेंट किया. मीन्स वी हैव रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स. परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या किया? x को अंदर रखा और 2 को बाहर रखा. एंड यू नो दैट 4 मीन्स क्या? 2 to the power 2. 2 का स्क्वायर 4 होता है. ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं. अब वी नो दैट अंडर रूट ऑफ, अगर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, if multiplication of two terms in under root, then we can write it as under root of a into under root of b. वैसा लिख सकते हैं. तो अब यहाँ भी क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें? under root of 2 to the power x power 2. क्यों लिखा ऐसा? अभी मालूम चलेगा. under root of 2 to the power x power 2 plus 2 square और यहाँ पे आया dx. Clear? And we know that square root of any square term, that is square root of a square, that is a. वन तो वही है, square root of 2 to the power x square. We get 2 to the power x under root of 2 to the power x to the whole square plus 2 square dx. Students, any problem? हो गया आसान. अब देखो इसको, अब तक आपने क्या किया? सिंप्लीफाई किया. नाउ योर आवर वर्क इज
टू एलिमिनेट, टू रिमूव दिस टर्म। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे केवल दो ही टर्म्स हैं, और कहाँ पे? विद इन अंडर रूट, बाहर उसके अगल बगल, besides this there are no any functions are present, should be present। तो आप क्या करोगे? इसको रिमूव करना है। अब कोई चीज कैसे रिमूव होगा? we know that our method is using substitution method, integration using substitution method। उससे क्या फायदा होता है? कुछ चीज ऐसा होता है, कोई कुछ फंक्शन dx में कंबाइंड होके dt में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ फंक्शन, कुछ टर्म dx के साथ कंबाइंड होके dt के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। देखते कैसे? if we assume 2 power x is equal to t, if 2 to the power x is equal to t, then derivative of this whole terms is equal to 2 to the power x into log of 2 dx is equal to dt। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 पावर x dx के साथ मिल गया। अब log of 2 कांस्टेंट हमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे आप? 2 to the power x into dx is equal to 1 upon log of 2 और क्या? dt। ये देखो, मीन्स अभी मैंने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से फायदा क्या है? कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो dx combining with some functions will be combined with dx, equivalent becomes equivalent to dt, वो dt की इक्विवेलेंट हो जाते हैं। देखो 2x था यहाँ पे, dx से कंबाइंड होके कब? आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या बन गया? dt। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। I is equal to, इसको आप I कंसीडर कर लो पहले। I is equal to इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 to the power x आपने क्या अज्यूम किया है? दैट इज t। ये लो t स्क्वायर हो गया और 2 स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये दोनों मिल गए, क्या बन गए? 1 अपॉन log of 2, 1 अपॉन log of 2 एंड dt। क्लियर? हम पहुंच गए अपने टारगेट पे। और 1 अपॉन log 2 इज ए कांस्टेंट, इसको आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल ले लो। 1 अपॉन log of 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और dt। अब बताओ, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब तो आसान हो गया ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप क्यों ना अप्लाई कर दें? दैट इज 1 अपॉन log of 2, that is x by 2, x means t by 2 under root of t square plus 2 square plus a square by 2, a means 2, a means 2 का square 4 by 2, that is log of x means t plus under root of t square plus 2 square plus c, this one is equal to 1 upon log of 2 t का मतलब क्या भाई? t का मतलब है 2 to the power x, so 2 to the power x upon 2 under root of 2 to the power x means 2 to the power 2x plus 4 plus twice 2 to the 4 log of mod of 2 to the power x plus 2 to the power 2x plus 4 plus c, this one is equal to, अब आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है? चाहो तो आप इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंदर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो प्लीज सी योर आंसर इन योर टेक्स्ट बुक एंड मैचिंग विद दिस। थोड़ा सा चेंज हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप वहां से मैच कर सकते हो, ताकि द प्रोसेस आपको समझना है, पेज अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट्स, डाउट